Hello dear students, welcome back to your biology channel. So we were on the circulatory system chapter and till now we have completed the composition of blood, different types of blood cells. Then we completed the blood groups, different types of blood groups and different types of blood vessels present in our body and the structure of human heart. Okay, that is over, and now today we are going to discuss about the function of heart. So heart is one of the most hard working organ of our body because it is working throughout our life. So I think till now it is clear to everybody that the function of heart is only to pump the blood throughout the body, not to purify the blood. So we will discuss here that how this heart will pump the blood throughout the body. Before starting the function of blood, let's do a quick revision of the structure of heart, because it is very important to understand the structure before starting the function. So in the structure of heart, we have already discussed 4 chambers are there: right atria or auricle, right ventricle, left atrium or left ventricle. Then 4 walls are present. Right atria और right ventricles के बीच का जो wall है, that is tricuspid. Left atria and left ventricle के बीच में bicuspid wall is also called as mitral wall, and 2 semilunar walls, pulmonary artery के base पे pulmonary wall and aorta के base पे aortic walls. These 2 walls are called as semilunar walls. और इन दोनों को जो cuspid walls है, tricuspid and bicuspid, they are also called as atrioventricular walls. Atrioventricular इनको क्यों बोलते हैं? Because they are the walls between the atria and ventricles. Clear है? Okay, and then come to the blood vessels. Blood vessels in the right atrium, superior and inferior vena cavas will come. From the right ventricle, pulmonary artery will take the blood to the lungs. Pulmonary veins will bring the blood again to the lungs, and left ventricle से aorta के through पूरी body में circulate हो जाता है. So these are the 4 great vessels attached to the 4 chambers. Here you can see one more structure, like some fibrous structures are also attached to the walls. ये क्या है? Chordae tendineae, जो क्या करते हैं? इन walls को अपनी positions पे fixed रखते हैं. So this part is not given in your book also, but sometimes this question may asked in your exam, because in previous years it was asked, what do you mean by chordae tendineae? So you can say that these are the fibers which will keep the position of walls at a particular place. Clear? So structure of heart is clear to everyone. Now let's start with the working of heart or function of heart. So function of heart is just to pump the blood throughout the body. Purification का काम किसका है? Lungs का. The function of purification of blood is done by lungs. And in order to circulate that pure blood, first of all, heart will receive the impure blood from all the body parts. Then it will send that impure blood to the lungs. And after purification, now lungs can't circulate that blood to all body parts. So again it will return back to the heart, and then heart will circulate it to the whole body. So we can say, यहाँ पे क्या हो रहा है? Suppose ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में आया, हार्ट ने उस ब्लड को सेंड किया लंग्स के पास, लंग्स ने उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करके उसको प्योरीफाई किया, एंड देन अगेन दैट प्योरीफाइड ब्लड विल कम इनटू द heart, and then heart will again circulate it to all the body parts except that lungs. So here it is very clear that the circulation of blood in the human heart is a double circulation, because the same blood will enter and leave the heart twice in each heartbeat. Same blood जो है हार्ट में वो 2 बार एंटर होता है. पहले आता है इम्प्योर फॉर्म में, फिर उस ब्लड को लंग्स के पास भेज दिया जाता है प्योरीफिकेशन के लिए, फिर वो सेम ब्लड प्योरीफाई होके वापस हार्ट में आता है, फिर उसको हार्ट सर्कुलेट करता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. दैट्स वाई इन आवर ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन विल अकर, यानी सेम ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर एंटर होता है. सो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्या क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड है जो कि सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर. क्लियर है? और इसके अलावा जो हमारे पास एक और ऑर्गन है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बट दैट इज़ फॉर द प्यूरिफिकेशन, दैट इज़ lungs. So now it is clear that blood will passes through the heart twice. That's why this circulation is called as double circulation. And I think double circulation is clear to everyone. Double circulation में क्या हुआ है? पहले बॉडी पार्ट से impure blood
हार्ट में आया है, हार्ट ने उसको लंग्स के पास भेजा प्योरिफिकेशन के लिए, देन दैट प्योरिफाइड ब्लड विल अगेन कम इनटू द हार्ट, देन हार्ट विल पंप दैट प्योरिफाइड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स पे क्या होगा, अगेन देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बॉडी पार्ट्स क्या करेगी, इस प्योरिफाइड ब्लड में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और इसमें ऐड कर देगी अपना वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सो अगेन इट विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड and now again it will come into the right auricle, then from here it will go into the lungs. So here that double circulation is divided into two main circulation. First circulation is systematic circulation, means the circulation between the heart and the body parts, that is called as systematic circulation. And the circulation between the heart and the lungs, this circulation is called as pulmonary circulation. Pulmonary word से ही clear है that pulmonary word is given to the lungs. So lungs और heart के बीच का जो circulation है, this is called as pulmonary circulation, and body parts के और heart के बीच का जो circulation है, which is called as systematic circulation. So let's understand better from this diagram that first of all let's discuss about the systematic circulation. First of all, from the left ventricle, the oxygenated blood will come into the systematic arteries, and from here it will be give off branches and it will be give to all the body organs except the lungs. Okay, यहाँ पे ये purified blood आ जाएगा, and from these arteries now, from these capillaries now the oxygen is diffused into the tissues, और ये deoxygenated blood जो है वो इन organ से अब कहाँ आ जाएगा, again it will come into the right auricle by superior and inferior vena cavas. Clear है? Okay, so this part of the circulation from the left ventricle to the right auricle, this circulation is called as systematic circulation. Is it clear? Okay, so this is a circulation between the heart and body parts. Now come to the pulmonary circulation. So pulmonary circulation में क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो जाएगा लंग्स के पास में, and then it will get purified here and again it will come into the left auricle. So that circulation from the right ventricle to the left auricle, this circulation is called as pulmonary circulation. Clear? Means the right ventricles will pump the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation or we can say purification, और ये oxygenated blood फिर वापस आएगा left auricle में by 4 pulmonary veins, and this circulation is called as pulmonary circulation. Is it clear to everyone? Double circulation is divided into two circulation, that is systematic circulation and pulmonary circulation. In your previous classes you have studied about the same double circulation in a simple diagram. So let's revise from that simple diagram also. ओके ये डायग्राम आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, सो आई थिंक यू स्टिल रिमेंबर दैट सिंपल डायग्राम. सो इसमें क्या हुआ है, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो सर्कुलेशन है, सॉरी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल नाउ द प्योर ब्लड विल कम इनटू द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से इम्प्योर वापस आता है राइट एट्रियम में. सो दिस सर्कुलेशन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर आया और लंग्स से वापस आ गया हार्ट के अंदर थ्रू द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. सो ये सर्कुलेशन हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्लियर है? सो इन द हार्ट द सर्कुलेशन विल बी द डबल सर्कुलेशन. नाउ लेट अस डिस्कस हाउ दिस हार्ट विल डू द पंपिंग मैकेनिज्म. इस पंपिंग मैकेनिज्म में वो क्या करता है, एक साइकिल परफॉर्म करता है. सर्कुलेशन मीन्स इट इज अ साइकिल एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल मीन्स यू ऑल नो कि हार्ट क्या करता है, वाइल डूइंग इट्स फंक्शन इट विल डू द बीटिंग, एंड विथ ईच बीट, विथ ईच हार्ट बीट, one cardiac cycle is completed. So what is cardiac cycle? Cardiac cycle is an events that occur from beginning of one heartbeat to the beginning of the next. Means पूरी एक हार्ट बीट में जो एक साइकिल परफॉर्म होती है सर्कुलेशन की, उस साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड एज वन कार्डियक साइकिल. यानी हमारा जो हार्ट है वो जब पंपिंग करता है तो वो बीट करता है. You all know that heart is beating, and with each heartbeat it is completing one cardiac cycle. और एक कार्डियक साइकिल के साथ वो डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है.
क्लियर? एक कार्डियक साइकिल में एक बार वो डबल सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है. सो इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स. ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हार्ट मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है. उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, पंपिंग होती है, और पंपिंग के साथ में डबल सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पंपिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ये अपने आप कैसे होता है. ओके, सो इट इज़ नॉट हैपनिंग ऑन इट्स ओन. यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होती है, उसके बाद में ये पंपिंग करता है. मीन्स फॉर दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज इनिशिएटेड बाय जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन जनरेट करता है? सी स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन प्रॉपर अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ हार्ट. ओके, यहाँ पे क्या है, जो राइट ऑरिकल होता है उसके टॉप मोस्ट पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड्स. ओके, ये जो सेल्स हैं, दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स विच विल जनरेट सम एक्शन पोटेंशियल, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं. और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके बाद में आ जाती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में. फिर यहाँ से वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू होते हुए पर्किंजे फाइबर्स के पास में आ जाती है. ये क्या है सब, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर्स. I want you to understand this because afterwards I will share one more animated video with you so that you can better understand that how it is happening. So आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझना है, but it is not given in your book, so it is not a part of your syllabus, but you need to understand. यहाँ क्या होता है, ये कुछ सेल्स हैं जो कि एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, क्योंकि जो हार्ट है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है. उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ ही वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी. सो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होना ज़रूरी है. इम्पल्स जनरेट होगी तभी वो कार्डियक साइकिल इनिशिएट होगी. सो इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, ये स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं. ये इम्पल्स भेजते हैं एवी नोड को. एवी नोड से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये पूरी जगह पे सारी मसल्स के ऊपर ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस. सो ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको सारी मसल्स के पास में दे देते हैं, और फिर ये मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है. सो यहाँ पे हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू दिस एसए नोड. इसको हम और क्या बोलते हैं, पेस मेकर. इट इज़ अ नेचुरल पेस मेकर. पेस मेकर क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिससे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड हो जाए और साइकिल कंप्लीट हुए. क्लियर है? सो अब हम पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल में यहाँ हमने बस ये देखा है कि ये जनरेट करता कौन है, इम्पल्स कौन जनरेट करता है जिससे कि कार्डियक साइकिल इनिशिएट होती है. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज कार्डियक साइकिल और इसमें क्या क्या होता है. सो इन अ कार्डियक साइकिल देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. सो द वर्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज वेरी सिंपल, बट साइंस के अंदर एंड इवन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डियक साइकिल में हमने इसको थोड़ा टिपिकल नाम दे दिया है. कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे सिस्टॉल एंड रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे डायस्टॉल. यू नीड टू लर्न दिस वर्ड्स. सिस्टॉल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, एंड डायस्टॉल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. क्लियर है? सो इन वन हार्ट बीट, यानी एक बार जो आपका हार्ट बीट करता है, दैट साउंड इज लबडब. हिंदी में हम उसको बोलते हैं धक धक, बट दैट particular sound is called as lub-dub. So in that one heartbeat there will be a completion of one cardiac cycle, and in that one cardiac cycle there will be one systole plus one diastole. और ये one heartbeat जो है वो 0.8 seconds में complete हो जाती है. क्लियर है? सो 1.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है. इसका मतलब क्या है, दैट इन 1 minute इट विल बीट मोर देन 60 times. So basically in 1 minute our heart is beating for 72 times because one heartbeat will be completed in 0.8 second. So एक heartbeat का क्या मतलब है, एक कार्डियक साइकिल. और एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है, एक बार हार्ट सिस्टॉल करता है और एक बार हार्ट डायस्टॉल करता है. सिस्टॉल और डायस्टॉल को ही लर्न करना है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्लेस पे. So in one cardiac cycle there will be one time contraction and one time relaxation. But here you need to understand one more thing,
कि ये जो मैंने लिखा है वन सिस्टोल, बट हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर पार्ट. सो ऑरिकल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम इसको काउंट वन करेंगे, बट इट इज़ अ टू पार्ट कॉन्ट्रैक्शन. पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को हम काउंट करेंगे एज वन सिस्टोल, बट इट इज़ अ टू पार्ट सिस्टोल. So what are the main events? Here it is just showing the timing. Okay, I will explain you that how it will be completed in 0.8 second. First of all, let us discuss the events of cardiac cycle. यानी एक बार जो cardiac cycle होती है उसमें सबसे पहले होगा auricular systole, यानी जो ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दोनों के दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे, यानी डायस्टॉल हो जाएंगे. सो बेसिकली इन वन कार्डियक साइकिल देयर विल बी दीज 3 स्टेप्स. हमने बोला है 2 है, 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टॉल, बट आई टोल्ड यू दैट हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स. सो इसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, ऑरिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बट वी विल काउंट इट एज 1 सिस्टोल because they both are part of heart. So one time the heart will do systole, but in 2 parts, auricular, ventricular. Then it will diastole, means it will get relaxed. And here it is showing the timing. सबसे पहले क्या होता है, AS, यानी सबसे पहले ऑरिकुल सिस्टोल होता है, यानी ऑरिकुल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो केवल 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद में ऑरिकल्स तो हो जाएंगे रिलैक्स्ड, और ऑरिकल्स का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में वेंट्रिकल्स भी क्या हो जाएंगे, डायस्टॉल यानी रिलैक्स्ड हो जाएंगे. क्लियर? सो ये साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, 0.1 सेकेंड में तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 0.3 सेकेंड्स के अंदर बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लग गए 0.4 सेकेंड्स, और 0.4 सेकेंड्स लगते हैं इनको डायस्टॉलिक स्टेट में. सो इट इज कंप्लीटिंग इन द 0.8 सेकेंड. टोटल 1 हार्ट बीट विल गेट कंप्लीटेड इन 0.8 second. So let's understand the events of cardiac cycle in this diagram. You can also prefer your own diagram which is given in the book. That is also very much similar to this diagram, only there is a difference of a color. So let's understand by the arrows here. Okay, and if you want I can do one more thing. I'll do the coloring portion here. Okay, so first of all diastole state. डायस्टॉल स्टेट में क्या होता है, दैट डायस्टॉल मीन्स रिलैक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सबसे पहले हार्ट डायस्टॉल स्टेज में है. सो व्हेन द हार्ट इज इन डायस्टॉल स्टेज, उस टाइम पे जो ऑरिकल्स हैं उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ऑरिकल्स है, बिकॉज जो ऑरिकल्स में जो वेसल्स आती है, यू नो वेरी वेल कि उसके आगे कोई भी वाल्व नहीं है, मीन्स कोई भी रुकावट नहीं है, ब्लड का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस है. So in the diastole stage what will happen? The blood will get filled in the auricles. Okay. Now what will happen? Atrial systole. Atrial systole means auricular systole. Auricular systoles में क्या होगा, ये जो ऑरिकल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स दिस पोर्शन विल डू द कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन द ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो दोनों वाल्स हैं इसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स. दिस वॉल एंड दिस वॉल इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. दीज आर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल. ये दोनों वॉल अब क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे. ओके, क्योंकि जब ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों वॉल्स ओपन हो जाएंगे, और अब क्या होगा, द ब्लड विल एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू दीज वॉल्स. क्लियर है? आई विल अगेन शो यू हियर. सी, सो ऑरिकुलर सिस्टोल्स को आपको कैसे पहचानना है, हियर यू नीड टू आइडेंटिफाई द डायग्राम, बिकॉज एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन में दैट डायग्राम विल बी गिवन टू यू, और आपको वो डायग्राम आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि ये यहाँ पे कार्डियक साइकिल का कौन सा इवेंट हो रहा है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एम, वो आइडेंटिफिकेशन के बाद ही आप सारे आंसर्स करेक्ट कर पाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एरोज. अगर ये एरोज दोनों एट्रियोवेंट्रिकल्स के बीच में बनाए गए हैं, सो इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ ऑरिकुलर सिस्टोल. बिकॉज जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा. सो अब मैं क्या करूँगी, एट्रियल सिस्टोल के साथ में आई विल नाउ शो द ब्लड हेयर.
ओके, ऑरिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये दोनों वाल्स ओपन हुए और अब ब्लड अब कहाँ आ गया है? नाउ द ब्लड विल कम इन टू द वेंट्रिकल्स. इज इट क्लियर? सो ऑरिकुलर सिस्टोल्स में क्या हुआ है? ड्यूरिंग द ऑरिकुलर सिस्टोल्स, ऑरिकल्स की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जो ऑरिकल्स के अंदर जो वेसल्स हैं वो अपने आप क्लोज हो जाएंगी. मीन्स वेना केवा भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन से, और जो पल्मोनरी वेन है वो भी क्लोज हो जाएगी. और इन ऑरिकल्स में ये जो ब्लड फिल्ड था पहले से, अब ये ब्लड कहाँ आ जाएगा? इन द वेंट्रिकल्स. ओके, द ब्लड विल कम इन टू द वेंट्रिकल्स. सो यहाँ पे क्या होगा? ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स ओपन होंगे एंड द ब्लड विल कम इन टू द वेंट्रिकल्स थ्रू दीज वॉल्स. ओके, और जैसे ही ये सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होगा, अब ये दोनों ऑरिकल्स तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, यानी इनमें खत्म हो गया है, ब्लड यहाँ से नीचे आ चुका है, तो ये रिलैक्स्ड हो जाएंगे. ओके, एंड नाउ दीज टू वॉल्स विल गेट क्लोज्ड. एट द एंड ऑफ द एट्रियल सिस्टोल्स ऑरिकल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे. जो जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा अब किस में आ जाएगा? इट विल कम इन टू द वेंट्रिकल्स एंड नाउ इट विल गेट क्लोज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. Now when the blood will get filled in ventricles, अब वेंट्रिकल सिस्टोल से क्या हुआ है? वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. वेंट्रिकल्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये वाले जो वॉल्स हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स हैं, यानी एट्रियो वेंट्रिकल्स वॉल्स हैं, वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो फिर से ब्लड कहाँ आ जाएगा? ऑरिकल्स में आ जाएगा. क्लियर है? सो ये वेंट्रिकल सिस्टोल्स में क्या हुआ है? सबसे पहले तो ये क्लोज हो चुके हैं, और अब ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब ब्लड कहाँ आ जाएगा? विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल नाउ द ब्लड विल कम इनटू द वेसल्स, यानी जो राइट वेंट्रिकल्स है उससे अब ये आ जाएगा कहाँ पे? इन द पल्मोनरी आर्टरी, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल नाउ इट विल कम इनटू द एओर्टा. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे एरोज कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं. वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में द एरोज विल गो आउट ऑफ द हार्ट इनटू द ग्रेट वेसल्स. क्लियर? नाउ हियर यू कैन सी द, आई विल show you the arrows once again. Now they are visible. Arrows ventricular systole में कहाँ जाएंगे? हार्ट से बाहर जाएंगे, बिकॉज जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो अब क्या होगा? जो ब्लड है वो अब प्रेशर से जाएगा, बाहर चला जाएगा. क्लियर? सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ? ये वाले जो दोनों वॉल्स है ये क्लोज हो गए थे, और जैसे ही इन्होंने पंप किया तो सारा का सारा जो ब्लड है वो अब आ गया ग्रेट वॉल्स में, और जब ये ब्लड इन ग्रेट वेसल्स में आ जाएगा तो अब इन दोनों पे जो सेमिलूनर वॉल्स हैं ये भी क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड वापस क्या हो? बैक फ्लो करके फिर से वेंट्रिकल्स में फिल ना हो जाए. इज इट क्लियर? सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में क्या हुआ है? वी विल अगेन रिवाइज. वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में क्या हुआ है? ये जो ब्लड वेंट्रिकल्स में था, इसके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड वापस ऑरिकल्स में ना है. और जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मींस ये जो वेंट्रिकल्स की वॉल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा, और इस प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ ही ये सेमिलूनर वॉल्स जो दोनों हैं वो ओपन हो रहे हैं, और ब्लड अब कहाँ आ जाएगा? ग्रेट वेसल्स में आ जाएगा. वंस द ब्लड विल कम इनटू द ग्रेट वेसल्स, नाउ दीज सेमिलूनर वॉल्स विल ऑल्सो गेट क्लोज्ड. क्लियर है? And now the blood is passed into the great arteries and now it will come out of the heart. यहाँ से वो lungs के पास चला जाएगा and यहाँ से to all the body parts. Clear? So how you will remember the stages or events? With the help of arrows, because एग्जाम में आपको कलरफुल डायग्राम भी नहीं मिलेगा. सो आपको क्या देखना है? एरोज. यू हैव टू सी द एरोज वेरी प्रॉपरली. जब अगर ब्लड यहाँ पे आ रहा है ऑरिकल से वेंट्रिकल में, देन इट इज अ एट्रियल और ऑरिकुलर सिस्टोल. एंड व्हेन द ब्लड इज गोइंग आउट, मीन्स जब एरो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी हार्ट से बाहर जा रहा है, देन इट इज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. क्लियर? नाउ अब क्या हुआ है? जैसे ही एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ, ब्लड सारा यहाँ आ गया था वेंट्रिकल्स में, और ऑरिकल्स क्या हो गए थे? डायस्टोलिक कंडीशन में चले गए थे, मींस वो रिलैक्स्ड हो गए थे. एंड हेयर जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म होगा तो ब्लड अब कहाँ आ गया है? ग्रेट आर्टरीज में आ गया है, और ये भी क्या हो गए हैं? वेकेंट. सो अब ये भी क्या आ जाएंगे? डायस्टोलिक स्टेज में. तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक स्टेज में आ गए हैं और ऑरिकल्स ऑलरेडी डायस्टोलिक स्टेज में थे. सो अब इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल.
because at the end of that ventricular systole now the ventricles will also relaxed, और इस स्टेज पे एट्रियास तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड थे क्योंकि अब उनके पास में ब्लड नहीं है. सो अब यहाँ पे सारे के सारे चारों के चारों हार्ट चैम्बर जो है वो डायस्टोलिक स्टेज में है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल. और जब जॉइंट डायस्टोल होगा तो अब धीरे धीरे फिर से वापस क्या होगा, दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी. यानी डायस्टोल में अब क्या होगा, फिर से ब्लड ऑरिकल्स में आके फिल होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड देन अगेन द साइकिल विल स्टार्ट. यहाँ फिर से क्या होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर दोनों फिर से डायस्टोलिक स्टेज में आ जाएंगे, जॉइंट डायस्टोल होगा. देन फिर से ब्लड ऑरिकल्स में फिल होगा, फिर से एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन जॉइंट डायस्टोल, एंड देन अगेन द साइकिल विल बी रिपीटिंग. ओके, इज इट क्लियर नाउ? नाउ हियर यू हैव सीन वन मोर थिंग कि जो वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं. कब कब क्लोज होते हैं? एट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म हुआ ये वॉल्स क्लोज हो गए, जिससे कि ब्लड वापस ना जा पाए ऑरिकल्स में. और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब खत्म हुआ तब भी क्या हुआ, ये दोनों जो वॉल्स है सेमिल्यूनर वॉल्स हैं ये क्लोज हो गए, जिससे कि ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में एंटर ना हो पाए. ओके, सो हार्ट बीट के टाइम जो दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट साउंड्स. सो ये जो हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली दे आर ड्यू टू द वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट. जो वाल्व्स होते हैं इनके क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट साउंड इज प्रोड्यूसिंग लाइक लब एंड डब. सो हार्ट बीट जब होता है तो दो साउंड आती है. फर्स्ट साउंड इज ऑफ लो पिच्ड लब एंड द सेकेंड साउंड डब इज अ वेरी हाई पिच्ड. सो जनरली हिंदी में बोलते हैं धक धक और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे लब डब, विच इज द फर्स्ट साउंड इज लब इज अ लो पिच एंड डब इज अ हाई पिच. सो ये जो दोनों साउंड्स हैं वो हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं, बिकॉज दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच विल मैग्नीफाई दैट साउंड एंड दैट कैन बी कंडक्टेड टू आवर ईयर नाउ. सो यहाँ पे साउंड क्वालिटी जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छे हमारे वॉल्स काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स पता लगाते हैं. So basically these sounds are due to the closure of the valves in a cardiac cycle. ओके, क्योंकि जब एट्रियल सिस्टोल एंड होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जस्ट स्टार्ट ही हो रहा होता है उस टाइम क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जिनको हम और क्या बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे. ओके, सो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे. क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं लब साउंड, और क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स यानी जो पल्मोनरी आर्टरी और जो एरोटा के बेस पे जो वॉल्स है दे आर कॉल्ड एज सेमिल्यूनर वॉल्स. और जब वो क्लोज हो जाएंगे देन दे विल प्रोड्यूस द साउंड कॉल्ड एज डब साउंड. सो हियर यू कैन सी ऑल द फोर वॉल्स. ओके, सो जब ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ था और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ था तो ये दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब क्लोज हुए तो साउंड प्रोड्यूस हुआ लब. और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवर हुआ और ब्लड यहाँ चला गया है दोनों ही ग्रेट वेसल्स में, तो यहाँ ये वाले जो सेमिल्यूनर वॉल्स है अब ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, देन इट विल प्रोड्यूस अ साउंड कॉल्ड एज डब. ओके, so is it clear now how the sounds will be produced? Sounds will always be produced by the closure of valves. Lub sound is by the closure of tricuspid and bicuspid valves. Okay, and dub sound is due to closure of semilunar valves. Clear? So we have studied about the cardiac cycle, double circulation, and the sounds produced by the heart means the heartbeat. In one heartbeat, lub dub sound will be produced, and that in one heartbeat, one cardiac cycle is completed, and this whole procedure, that whole cardiac cycle will be completed in 0.8 seconds. Clear? Now, next topic is pulse rate and blood pressures, portal systems, and your lymphatic system that we will discuss in the next session. Thank you so much. Students, please go through the chapter from your book and ask me if you have any doubt. If you have not understood any concept, then ask me question. I will explain you once again. Okay? Thank you so much.